सर आज मुझे Uh-huh. आज रिकॉर्डिंग से मुझे बड़ा फायदा हुआ है। Okay. Yes, that's very good. Okay, online class when we have there is recording and we can you see replay and go through once again, take review of the class. But the physical जी जी class doesn't have this facility. You come, you listen, and maybe when you go, you forget everything, or you may be missing what you have learned. Okay, recording is very good. जी That's why I prefer that the class should be online, so proper recording is made, and at the same time we can also make assessment of our progress at the same time. All right. So यस सर। today I'm going to introduce you to basic questions that are really very important. And if you, this is the part of the speech where we feel some difficulty. So basic questions are mostly, do you? This is a very common question. And answer to this question is, yes, I. Hello, can you hear me? यस यस सर। Okay. So answer to this question is, yes, I. I don't know why this camera is going off. Yeah. Okay, let me have more light. uh, I think that's good enough. जी So the next question is, are you? Answer will be yes, I am. Are you? Yes, I have. वो ये कहाँ चला गया? ये तो आना था इधर. Yes, I have. Okay. Have you been? Answer will be yes, I have been. Can you? Yes, I can. Okay, now I put the question, you give the answer, okay? The blue one answer here, as you can see, and these are the answer. Okay, do you answer me? यस आई Are you? यस आई एम Have you? यस आई Have you been? हैव यस आई हैव बीन Can you? यस आई कैन Okay, so this is the rest of the part. What I say, you will return the same. For example, do you like to play cricket? And you can say yes, I like to play cricket. That is the same. Okay. यस 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 The rest, what's the remaining part of the question that doesn't change. Only the change in the beginning takes place. You changes into I, and I changes into you. So this is the only thing. Okay. Did you? This is past related questions relating to past. Answer to this question, if it is yes, you can say I did. You can give second form, okay? And if you don't जी know the second form, you can say I did. And for example, did you go? I did go. This is also correct. But if I went, yes, I went. This is better than did you? Were you? This question is changed into yes, I was. Had you? Yes, I had. Had you been?
Yes, I had been. You? Yes, I could. You see, I have just made changes into the helping verbs. In the beginning, in the first case, we had the helping verbs of present, and now I am just having the helping verbs of the past, and that is a major change. Otherwise, nothing is changing. Okay. So, Yes, did sir. you? Yes, I did. Okay, were you? Yes, I am. I was. इनके आंसर बड़ी quickly आने चाहिए. You must not take time to think. Okay. The quicker you Yes, sir. are, the better it is. Had you? Yes, I had. Had you been? Yes, I had been. Could you? Yes, I could. Now 5 questions relating to future. Will you be? Yes, I will be. Will you have? Yes, I have. I will have. Will you have been? Yes, I will have Have. been. Will you be able to? Yes, I will be able to. Okay. Yes, sir. These are the basic questions. 15 I have written. They are in the activized form, and there will be 14 in the passivized form. I shall write a little short after. Because major change doesn't take place in the sentences, specified type sentences. Okay. So Yes, sir. normally when we are talking to someone, the person who is talking to us mostly he uses these type of questions. His questions are beginning with these words, or he may add some question word before this, like I told you, will, would, shall, should, can, could, no, not this. Why, where, when, what, how, who, whose, whom, which. Okay, these are the question words. For example, do you go? Yes, I go. So where do you go? Where can we edit? Nothing else और कुछ भी इसमें पहले ऐड नहीं होता. All right. Yes, sir. Now, so I must write 14 more. Is it? Answer is yes, it is. इसमें इस तरह के जो कि ये पैसिवाइज है एक हेल्पिंग वर्ब इसमें ज्यादा होता है. ठीक है. Is यस it? सर. सर ये जो ऊपर वाले क्वेश्चन थे इनके हम मुझे थोड़ा को बताइएगा उर्दू में जरा. उर्दू में कल बताए तो थे सारे. या वो तो सर जी पता था लेकिन ये जो अभी आपने बताए और जिस तरह विल यू इसमें हैव बीन. ट्रांसलेशन नहीं होती. यस आई विल हाँ, हैव बीन. हाँ, ये इसकी ट्रांसलेशन की जरूरत नहीं है. ट्रांसलेशन उसी की है जो कल वाले आपने किए थे ना, उनकी ट्रांसलेशन होगी तो जी उनकी जी. ऑटोमेटिकली हो जाएगी. ठीक है. तो बजाय इसके कि यस सर. आप 29 वो याद करो, 29 ये याद करो. इट्स बेटर आई रिकमेंड दैट यू शुड वो जो कल वाले थे उन्हीं को जो है अच्छी तरह फोटा लगाएं. ठीक है. उनमें ठीक है. अगर जो बात नहीं ठीक है. समझ आती तो फिर जो है जब आप मुझसे डिस्कस करें कि सर इसमें मुझे ये चीज डाउटफुल है या नहीं समझ आ रही, एक्सप्लेन करने जी आप. जी. कल आप मुझे पूछ रहे थे जी कि एक 5 का तुका का आपने बात की थी.
कि ये काम हो चुका है, फॉर एग्जाम्पल मैं खा चुका हूँ, तो जब चुका हो गया जी तो ये पास्ट हो गया, ठीक है, तो ये हाँ जी प्रेजेंट नहीं रहता। तो ये दोनों जो हैं, ठीक मैंने खाया या मैं खा चुका हूँ, ये दोनों जी पॉइंट पे होते हैं, ठीक है। जी यहाँ पे जी जी कोई काम खत्म होता है, चुका हो जाता है वो काम, ठीक है, मैं लिख चुका हूँ, कंप्लीट हो जाता क्योंकि ये हाँ जी बिल्कुल फ्रेश है, अभी इंटरमीडिएट सूखी है, तो इसलिए इसको हम प्रेजेंट में जो है कंसीडर करते हैं। एट द सेम टाइम इसी सेंटेंस को मगर बिल्कुल यानी बिगिनिंग ऑफ द पास्ट है, अभी पास्ट यहाँ से शुरू ही हो रहा है, तो हम इसको कहते हैं आई वेंट। आई वेंट जो है ये पास्ट फ्रेश है, ठीक है, अभी ये बहुत ज्यादा जी पास्ट नहीं हुआ है। बहुत ज्यादा पास्ट जो है वो हैड लगा के हम करते हैं, जैसे चुका ठीक था, वो जो मरीज मर चुका था डॉक्टर के आने से पहले, इसमें दो काम हुए, डॉक्टर आया और मरीज मर चुका था। और तो मर जो जी काम पहले हुआ है उसके साथ हम हैड लगा लेते हैं, जो दूसरा है बाद वाला उसको हम S+2 फॉर्म में रखते व- हैं, क्योंकि द इंसिडेंट ठीक बिलोंग टू द पास्ट, हम पास्ट में रहते हैं, उसमें प्रेजेंट के साइन हम नहीं यूज करते हैं, ठीक है। तो जब ठीक हम प्रेजेंट लिख रहे होते हैं उस वक्त हम ये S+2 यानी ऐसा इवेंट जो खत्म हो चुका है, अभी फ्रेश फ्रेश खत्म हुआ है एंड इज जस्ट बिकम द पार्ट ऑफ द पास्ट, तो उसके लिए फिर हम ये आई हैव, ही हैज, इस तरह की हम उसको यूज कर लेते हैं, ठीक है। ये जी एक जी जी पॉइंट है, यहाँ पे प्रेजेंट खत्म होता है, वहीं से पास्ट जो है शुरू होता है, ठीक है। शुरू होता है एक यस काम सर हो चुका है तो पास्ट वहीं से शुरू होगा, क्लियर। हाँ जी हाँ, जी तो इनके दोनों के सेंस नहीं है, ऑलमोस्ट करीब करीब है, और इनकी ट्रांसलेशन का बस 19-20 का ही फर्क है सिर्फ। अच्छा जी, उसके बाद है इज इट बीइंग, यस इट इज बीइंग, यस इट इज बीइंग क्योंकि मैंने आपको बताया था पहले कि आपको जो चीज परेशान करने वाली है वो बी बीन बीइंग है, और इस तरह के सेंटेंसेस में हाँ जी बीइंग बहुत ज्यादा इस्तेमाल हो रहा है, ठीक है। ठीक ठीक सर जी ये हम यस से पहले यस के बाद ये इट क्यों ले आए हैं क्या हुआ? ये रिप्लेस क्यों कर रहे हैं हेल्पिंग वर्ब को यस के बाद अभी जो लिख रहा हूँ, जी मतलब जितने ऊपर भी लिखे हैं वो भी हाँ हेल्पिंग इसमें वर्ब अभी के मैंने बाद वर्ब यूज नहीं किया, मैंने वर्ब यूज नहीं किया, वर्ब क्योंकि जैसे हम सुनते हैं वैसे ही कह देते हैं, उसमें चेंजेस नहीं होती हैं, ठीक है। तो इसमें ठीक क्योंकि हेल्पिंग वर्ब के अरेंजमेंट की चेंजेस होती है, तो दैट इज व्हाई इसमें हमें क्विक होना बहुत जरूरी है। इससे पहले कि मैं आपको बहुत ज्यादा यहाँ डिटेल बता दूं और आपको ये भी ना याद, बहुत इंपॉर्टेंट ही ना याद रहे, ठीक है। ठीक तो जी वेरी जी इंपॉर्टेंट जो है ठीक दैट इज द स्टेम ऑफ द ट्री, ट्रंक ऑफ द ट्री जो है वो इंपॉर्टेंट है, अगर आपने वो उखाड़ लिया सारे दरख्त के पत्ते साथ ही चले जाते हैं, ठीक है। अगर एक पहले पत्ते पकड़ना शुरू कर दूं तो ट्रंक तो रह जाएगा ठीक पीछे, ठीक समझे मेरी बात। ठीक है जी जी इसमें कुछ चीजें हैं वो ज्यादा इंपॉर्टेंट होती हैं, कुछ चीजें इतनी इंपॉर्टेंट नहीं होती हैं, ठीक है। अच्छा जी, जी जी हैज तो इट, सर ये जो भी हम क्वेश्चन ये जो भी हम क्वेश्चन कर रहे हैं इन ये किस लिए हैं या और ये ये स्पीकिंग में बड़ी रुकावट पैदा करते हैं, ठीक ठीक है। अगर आप इनमें यस फ्लुएंट हो जाएंगे तो आपको जो है जी जी बोलने में दुश्वारी नहीं होगी, यही वो पॉइंट ठीक है जहाँ पे हमारी जुबान रुकती है। यस सर इनको टिप्स पे आना चाहिए हाँ, क्योंकि हम हमें समझ नहीं आती, हम रुक जाते हैं, पता नहीं क्या मतलब है, क्या है क्या नहीं, ठीक है। इसलिए फिर यस लगा के ऐसे ही हाँ, बोल रहे हैं इसी तरह से ये फाइव है, हम इसको चेंज कर देंगे पास्ट में। अभी ये ऑलमोस्ट सेम ही है, मैंने एक ही वर्ड चेंज करना है, सिर्फ हेल्पिंग वर्ब जो है पास्ट का हेल्पिंग वर्ब लिख रहा हूँ, इज एम आर की जगह वाज वर्ब लिखूंगा, हैज हैव की यस जगह कर दूंगा एंड देन इट बिकम्स पास्ट, कैन की जगह कुड हो जाएगा। ठीक वाज इट, वाज इट, सॉरी, yes it was it being, yes it was being, had it been,
Had it been being? Yes, it had been being. Would it be? Yes, it would be. और 4 रह गए. Will it be? Yes, it. Oh, yes, it will be. Will it being? Yes, it will be being. Will it have? Yes, it will have. Sorry. Will it have been? First. Yes, it will have been. Will it have been being? Yes, it will have been. नहीं बेटा, ये हैं 29 मैंने लिखे हैं, ये क्वेश्चन फॉर्म में है. 29 क्वेश्चन, 29 आंसर्स, एंड दिस इज वेरी गुड टू मेक प्रैक्टिस विद देम. ओके, अब आपने यस सर. लेने हैं. यू डोंट हैव टाइम टू थिंक अबाउट, सोचना नहीं है, ठीक है. जितना आप डिले यस करेंगे सर. समझे उतनी आपके स्पीच में यू हैव आपको बोलने में उतनी रुकावट पैदा हो सकती है, क्योंकि यही वो पार्ट ऑफ द सेंटेंस है या क्वेश्चन है जिसकी हमें समझ नहीं आती है. तो जैसे यस. स्टिल यू वर वरीड, सारे पे मीनिंग क्या है, ठीक है कि नहीं. तो जी. अगर आपको मीनिंग आते होते तो मुझे पूछते क्यों. क्लियर? जी. ठीक है ना बेटा. सो हाँ जी, हाँ जी. हाँ, क्यों वो कल जो मैंने क्वेश्चन लिखाए थे ना वो इस तरह के थे. आई अभी आप जो आंसर देंगे ना इनके इसी तरह हाँ जी. जो आंसर मैंने कल आपको जो सेंटेंस लिखाए थे वो क्योंकि क्वेश्चन फॉर्म में नहीं थे, वो आंसर थे और ऑलमोस्ट यस वाले वो सारे थे, ठीक है. और ही राइट्स हाँ जी. सामने. तो आई राइट, आई एम राइटिंग, आई हैव रिटन, आई हैव बीन राइटिंग, आई कैन राइट, ये उसी तरह के हैं, ठीक है. इनके ट्रांसलेशन. यस. जी, जी. हाँ नाउ क्योंकि दिस पार्ट ऑफ आवर लैंग्वेज है, कोर्स है, यहाँ पे हम ज्यादा ट्रेनिंग दी है वो स्पीकिंग पे, क्योंकि अब आवर बेसिक जो है डिमांड जो है वो स्पीकिंग है, वो रीडिंग जी. राइटिंग नहीं है. तो उसमें जो है टू एंगेज यू इन स्पीकिंग एंड टू फैसिलिटेट यू, क्योंकि नेचुरली जब हम बोल रहे होते हैं हम उस वक्त ये नहीं देख रहे होते कि ट्रांसलेशन क्या, उर्दू में क्या ट्रांसलेशन होगी. हम डायरेक्ट इंग्लिश हाँ में जी. होते हैं और हम उसके मुताबिक जवाब दे देते हैं. बाद में सोचते रहते हैं कि आप यस. क्या है, ठीक है. So, ठीक है सर. इनके हाँ एक और बात बताइए, ये जो क्वेश्चन दिए हैं अगर आपका सेंटेंस किसी क्वेश्चन फॉर्म से हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट हो रहा है, जैसे डू जी, है, जी. ठीक है, यानी इनसे पहले कोई क्वेश्चन वर्ड जी, नहीं है, व्हाई, वेयर, व्हेन, व्हाट, हु, हुज, हुम, व्हिच वगैरह ये नहीं जी, है, जी. क्वेश्चन वर्ड. जी. क्वेश्चन वर्ड है. अगर वो नहीं है मैं इधर लिख देता हूँ. व्हाई, वेयर, व्हेन, व्हाट, हाउ, हु, हुज, whom, which, ये 9 है, ठीक है. आई थिंक जी. ये हो गया. 2, 3 and 4 and 5, 6, 7, 7, 9, 8, 9. ठीक है. तो these are यस. the 9 helping verb. कभी कभी हमारा सेंटेंस है इन, या अगर हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट नहीं होता है तो फिर इन से स्टार्ट होगा, इनके फौरन बाद एक हेल्पिंग वर्ब आएगा, दैट मींस इट्स अ क्वेश्चन. अगर इनके फौरन बाद हेल्पिंग वर्ब नहीं आता है तो मोस्ट प्रोबेबली 95% को हो सकता है वो क्वेश्चन ना हो, ठीक है. इनके यस. फौरन हेल्पिंग वर्ब जरूर आना चाहिए अगर ये क्वेश्चन है. अगर इनके फौरन बाद हेल्पिंग वर्ब आता है तो इसका मतलब है कि ये क्वेश्चन क्वेश्चन वर्ड. है. अगर इनके फौरन बाद सब्जेक्ट आ जाता है तो फिर ये क्वेश्चन नहीं होता, फिर इनके मीनिंग बदल जाते हैं. ये यस. क्वेश्चन फॉर्म से ये आंसर फॉर्म में आ जाते हैं. जैसे वाई का जी. मतलब क्यों, तो आंसर में भी हो जाएगा जिस वजह से, ठीक है. यस. So
हमारा जो क्वेश्चन है या तो हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होता है जो मैंने अभी लिखे हैं। डू डज आपस में या चेंज हो क्वेश्चन सकते वर्ड हैं, से। इज एम आर आपस में चेंज हो सकते हैं, हैज हैव चेंज हो सकते हैं, बाकी नहीं है दे गो द सेम। बार बार चेंज हो जाएंगे, जी हैड जो है सेम रहता है, कुड सेम रहता है, कैन का कोई इशू नहीं है, ठीक है। तो जी बाकी जो है वो क्वेश्चन सेम ही रहते हैं, उनमें किसी किस्म का कोई प्रॉब्लम नहीं होता है। हाँ जी जी, आप नाउ वी आर गोइंग टू मेक प्रैक्टिस। इसके बाद है मैंने जैसे कि डू यू के बाद मैंने जैसे कहना है, आपने वही रिपीट कर देना है, ठीक है, उसको चेंज डू करने की कोशिश नहीं करनी है। डू मतलब यू कि आप क्वेश्चन करें, आप पहले तो क्वेश्चन करेंगे डू मैं यू, बगैर यानी यस आई। बगैर वर्ब के पूछता हूँ, ठीक है फर्स्ट। आप उसके बाद मैं नेक्स्ट में वर्ब ऐड करूंगा, ठीक है। उसके बाद जी वर्ब के बाद फिर एक जी ऑब्जेक्ट भी ऐड कर लेंगे। हाँ, डू यू, जी यस आई, आर यू, यस आई एम, हैव यस आई यू बीन, यस आई हैव बीन, कैन यू, यस आई कैन, डिड यू, यस आई डिड, वर यू, यस आई वाज, हैड यू, यस आई हैड, हैड यू बीन, यस आई हैड बीन, कुड यू, यस आई कुड, विल यू, यस आई विल यू बी, यस आई विल बी, विल यू हैव, yes I will be, I will have, yes I विल यू will हैव have, बीन, yes I will have been, विल यू बी एबल टू, yes I will be able to, इज इट, yes it to, yes it is, इज इट बीइंग, yes it is being, हैज इट हैज इट बीन, yes it has been, हैज इट बीन बीइंग, yes it has been being, कैन इट बी, yes I can be, इट कैन इट कैन बी। ये इट चेंज नहीं होगा, वो आई और यू आपस में चेंज होते हैं, ठीक है। yes हाँ, ये इट वगैरह चेंज नहीं होंगे। कैन इट ठीक, बी, yes it can be, इट की जगह पे कोई चीज हो सकती है, टेबल हो सकती है, ब्लू बर्ड हो सकता है, एनीथिंग, कुछ भी हो सकती है, चेयर हो सकती है, हाउस हो सकता है, ओल्ड हाउस हो सकता है, ठीक है, हॉन्टेड जी हाउस हो सकता है, एनीथिंग। जी जी, वाज इट, yes I was, yes it was, वाज इट बीइंग, yes it was being, हैड इट बीन, yes it, I had, yes it had been, हैड बीन, जी हैड इट yes बीन, it had, हैड yes इट बीन it बीइंग, had been, हैड इट बीन yes it बीइंग, had been being, कुड इट बी, yes 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 it could be, इट कुड बी, विल इट बी, yes it could, it will be, will it be being, yes it will be being, will it have been, yes it will have been, will it have been being। yes it will have been being, Okay, so this is, हम इसकी बहुत ज्यादा प्रैक्टिस करते हैं, and you should keep in mind and you should be very fluent in it। इसके आंसर बड़ी जल्दी आने चाहिए, क्योंकि दो दो वर्ड के क्वेश्चन है, इसमें डिले होने का कोई चांस नहीं होना चाहिए, ठीक है। जी The better you answer this, ये मुझे पूछेंगे मैं फौरन आपको आंसर दे दूंगा, ठीक है। उसी वक्त कल जो yes है बेशक आप यहाँ से ट्राई कर लीजिएगा, क्योंकि ये बोल बोल जी के मैंने अपने दिमाग में सेट कर लिए हुए हैं, बैठे हुए हैं, तो मुझे पता है क्वेश्चन बेसिक जो है, जो क्वेश्चन का बड़ा हिस्सा होता है, जो वो यही है। अगर ये नहीं होते हैं तो फिर हमें कोई प्रॉब्लम नहीं होती आंसर करने में, ठीक है। सर इनकी हाँ प्रैक्टिस बार बार इनको रिपीट करके बोलें। हाँ, आई विल हर पे मैं अपना हर लेक्चर जो है, जब जब आप मेरे पास आएंगे तो मैंने स्टार्ट तो मैं सबसे पहले यही बोलता हूँ, ठीक है। ये मैं बाकी यस मैं सर, कुछ भूल जाऊंगा, मुझे नहीं याद रहेगा मैंने पहले दिन क्या बताया था, लेकिन ये जो है, बिकॉज यू आर रिलेटिंग टू स्पीकिंग, तो स्पीकिंग से जो जी है आपका, इसीलिए मुझे आपसे ये प्रैक्टिस जो है वो करना पड़ती है। अगर आप यहीं पे जी अटक गए तो फिर आगे जो है नेचुरली वी विल हैव सम डिफिकल्टी, तो उसमें मुझे असेसमेंट में आसानी रहती है कि आप पहले जी आपको यहाँ पे फ्लुएंट हो, और उसके बाद जो है हम आगे चलें। दिस इज द फर्स्ट फर्स्ट स्टेप है, ठीक है, जी टुवर्ड्स यस स्पीकिंग इंग्लिश। जी नाउ डू यू रीड अ बुक, जी डू यू रीड अ बुक, यस आई रीड अ बुक, आर यू रीडिंग अ बुक। यस आई रीडिंग, यस आई एम रीडिंग, हाँ, बाकी तो बुक तक चलो ना, चलो रीडिंग तक हाँ कर लेते यस हैं, रीडिंग तक ही रहते हैं। डू यू रीड, यस आई एम रीड, यस एम आई कहाँ से आ रीड, गया, हाँ,
डू Yes, वाले I क्वेश्चन read. में एम इस्तेमाल नहीं करना। अच्छा, डू यू रीड? Yes. Yes, I read. आर यू रीडिंग? Yes, I am reading. हैव यू रेड? Yes, I have pen. रेड? Read. हाँ जी, हैव यू रेड। ओ हैव यू पेन, तो वो तो आसान सेंटेंस है। आई हैव नॉट, वो हाँ तो आसान है। हैव यू जी रेड जी। Yes. थर्ड फॉर्म है ये। Yes. Yes, I have read. हैव यू बीन रीडिंग? Yes, I have been reading. कैन यू रीड? Yes, I can read. अब ये देखें, इससे पहले और पांचवें सेंटेंस में पहली फॉर्म इस्तेमाल होती है, दूसरे और चौथे में इंक फॉर्म इस्तेमाल होती है, और तीसरे में तीसरी ही इस्तेमाल होती है। ठीक है, जैसे मैंने Yes. रीड कहा, इधर भी रीड था, इधर रीडिंग कहा था, इधर भी रीडिंग, और इधर जो है रेड थर्ड फॉर्म मैंने कही थी। यही यही जी सिस्टम जो है कि अगले पांच में भी वही रिपीट होता है। वर्ब जो है इसी तरह से यूज होते हैं। हमने सिर्फ पास्ट कैसे किया है, इनकी फर्स्ट हेल्पिंग वर्ब चेंज करके, तो बाकी सीक्वेंस है वो जी सेम रहता है। और डिड यूज है, हमने डिड इस्तेमाल किया, फॉर्म पहली ही रहेगी। अगर डिड इस्तेमाल नहीं, यस में कई दफा ऐसा होता है हम डिड इस्तेमाल नहीं करते, तो हम सेकंड फॉर्म कह देते जी। हैं। ठीक है। हाँ, ठीक। डिड यू रीड? Yes, I did read. आई डिड रीड भी सही है, आई रेड दोनों ठीक है। ठीक है, वर यू जी रीडिंग? सर। Yes, I was reading. हैड यू रेड? Yes, I had read. हैड यू बीन रीडिंग? Yes, I had been reading. कुड यू रीड? Yes, I could read. विल यू रीड? Yeah, yes, I will read. विल यू बी रीडिंग? Yes, I will be reading. विल यू हैव रेड? Yes, I will have been. Yes, I will have reading. रीडिंग कहाँ से, हैव के बाद थर्ड फॉर्म होती है। विल यू हैव रेड? Yes, I will. Yes, I will have read. विल यू हैव बीन रीडिंग? Yes, I will have been reading. विल यू बी एबल टू रीड? Yes, I will be able to read. हाँ जी। इसमें जो है, चूंकि ये पैसे वाइज है, पैसे वाइज में होती ही थर्ड फॉर्म इस्तेमाल होती है। ठीक है, क्वेश्चन में भी आंसर जी। में भी फॉर्म नहीं चेंज होती, इसमें पैसे वाइज में हमेशा थर्ड फॉर्म इस्तेमाल होती है। तो इज इट रेड? Yes, it is read. रेड। Yeah, it is read. इज इट, इसमें मैंने आपको बताया ये पैसे वाइज है, इसमें तमाम सेंटेंसेस में थर्ड फॉर्म इस्तेमाल होगी, वर्ब की थर्ड फॉर्म इस्तेमाल, और कोई नहीं, इंक फॉर्म नहीं इस्तेमाल होगी, फर्स्ट फॉर्म नहीं होगी, और ये सेकंड फॉर्म भी नहीं, सेकंड फॉर्म तो होती ही नहीं है। ठीक है, जी, yes. तो पैसिव वॉइस में एक हेल्पिंग वर्ब जरूर होता है, कम से कम एक हेल्पिंग वर्ब जरूर होता है, प्रेजेंट हो, पास्ट हो, फ्यूचर हो। ठीक है, फ्यूचर में कम से कम दो जी, होते हैं पैसिव वॉइस में। तो yes. इज इट रेड? Yes, it is read. Read. रेड। आपने बाकी सुन, जैसे सुना वैसे ही कहना है। अच्छा, उसको नहीं चेंज करना। इज इट रेड? Yes. Yes, it is read. इज इट बीइंग रेड? Yes, it is being read. हैज इट बीन रेड? Yes, it has been read. हैज इट बीन बीइंग रेड? Yes, it has been being read. कैन इट बी रेड? Yes, it can be read. ओके, वाज इट रेड? Yes, it was read. वाज इट बीइंग रेड? Yes, it was being read. हैड इट बीन रेड? Yes, it had been read. हैड इट बीन बीइंग रेड? Yes, it had been being read. कुड इट बी रेड? Yes, it could be read. विल इट बी रेड? Yes, it will be read. Will it be being read? Yes, it will be being read. Will it have been read? Yes, it will be have been read. इसमें भी कोई नहीं इस्तेमाल किया, आपने गलत बोला है। ठीक है, will it have been read? Yes, yes, it will have been read. Will it have been being read? Yes, it will have been read. हाँ भाई, इसमें being छोड़ दिया आपने। ठीक है, will it have been being Is read? yes, it will have been being read. हाँ, जुबान रुकती है ना। Will it have been जी, being read? yes, it will have been being read. हाँ, यहाँ के जिन बैठा हुआ है। ठीक है, बोलने नहीं देता। ये be been being जी, जो है, ये जिन है इंग्लिश के। ठीक है, भी इनको क्या, जी, इनको जी, काबू काबू करें, प्रैक्टिस से इनको काबू करें। ठीक है, दिस इज रियली वेरी जी इंपॉर्टेंट। सर। सो Yes, नाउ आज मैंने आपको ये इंट्रोड्यूस करवाया है। इनसे पहले ये वर्ड आ जाते हैं, मोस्टली सारे तो नहीं आते, और दूसरे पहले ये डिपेंड करता है हम कौन सा वर्ब यूज कर रहे हैं, उसके मुताबिक जो है इनमें से अक्सर जो है हम यूज कर देते हैं, लेकिन इन 9 में से yes, कोई एक होता है।
ठीक है, इन्हीं जी, नाइन में से कोई जी एक सर। होता है और कोई नहीं होता। ठीक है, तो यस, अब आपको यस, क्वेश्चन यस, के सारे स्ट्रक्चर की समझ आ गई। ये क्वेश्चन जो हैं ये यस, सारे, वो बाकी जो क्वेश्चन और होते हैं, इज दिस अ कैट, वो सारे आसान है। ठीक है, इज दिस अ कैट वो भी इसी में ही है। इज इट जो है, इज इट अ कैट, इज दिस अ कैट, वो सारा वो सिंपल सेंटेंस है, उसमें वी डोंट हैव जी, प्रॉब्लम इन दैट। हमारी प्रॉब्लम इन सेंटेंसेस में है। ठीक है, यस सर। अब जो है हम एक न्यू विषय की तरफ जाते हैं, और वो क्या था जी, डेस्कटॉप पे क्योंकि इसमें ज्यादातर हम ट्रांसलेशन नहीं करते हैं, तो एक को जो अभी हम स्टार्ट करने वाले हैं इसमें हम ये है ट्रांसलेशन, ताकि हम बोलते ही ट्रांसलेशन है, और इसके बाद एक और एक्सरसाइज है उसमें हम ट्रांसलेशन करते नहीं है। फिर एक जो है हमारी एक्सरसाइज है जिसमें हम लॉन्गर स्पीचेस जो हैं उनको हम प्रेफर करते हैं। ठीक है, यस, यस सर। तो ये जो है हम आज जो है चुके हैं, चुका है, चुकी है, चुका था वगैरह इस तरह के सेंटेंसेस हैं। ठीक है, और जी, इसमें हम हैज हैड इस्तेमाल करते हैं, और अगर फ्यूचर है तो विल हैव हो जाएगा। अभी हमने इस तरह की प्रैक्टिस की है। ठीक है, विल इट हैव हाँ बीन जी, करके हमने, विल यू हैव बीन, ठीक है, इस तरह के हमने क्वेश्चन की प्रैक्टिस की है। तो ये उसी तरह से है। ठीक है, विल यस नॉट सर। को वॉन्ट लिख देते हैं। ठीक है, वुड जी, नॉट को भी वांट लिख देते हैं, विल नॉट को भी वांट लिख देते हैं, इट डजंट मेक प्रॉब्लम, इसमें ज्यादा नहीं इशू है। अच्छा जी, उसके बाद जो है हम इसको देखते हैं। जी, वो अपने इम्तिहान में पास हो गई है, ये मैंने आपको बताया था। अलिफ गया है या चुका है, दोनों की ट्रांसलेशन सेम ही है, हैज हैव के साथ थर्ड फॉर्म। जी, तो वो अपने इम्तिहान में हाँ पास जी, हो गई है, या वो अपने इम्तिहान में पास हो चुकी है, दोनों की ट्रांसलेशन एक ही है। ठीक है, जी। वो अपने इम्तिहान में पास हो गई है। She has got through her test. हाँ, ऐसा में ये एक्चुअल ये सेंटेंस, ये जो उर्दू में लिखा हुआ है ये पैसिव वॉइस है, इसमें हो इस्तेमाल हुआ है। ठीक है, असल इसकी हाँ जी, ट्रांसलेशन ये है कि वो इम्तिहान पास कर चुकी है। ठीक है, हाँ जी, या उसने इम्तिहान पास कर लिया है। तो इसमें हो जो है वर्ड है, ये पैसिव वॉइस की निशानी है उर्दू में। इसकी ट्रांसलेशन ऐसे नहीं होनी चाहिए थी, ट्रांसलेशन मैं इसकी सही जी, करके बोल रहा हूँ। उसने इम्तिहान पास कर लिया है। हाँ जी। हाँ, ये पढ़ें। She has got through her test. हाँ, गेट थ्रू होता है, पास होना, गॉट इसकी थर्ड फॉर्म है, गेट गॉट गॉट। मैंने Yes, उसका नुकसान पूरा कर दिया है। अब देखें अलिफ है की साउंड, या उस वक्त सही समझ नहीं आ रही थी मैं क्या कह रहा था। अलिफ है, ये देख लें। हाँ जी, और उसने, हाँ जी। मैंने उसका नुकसान पूरा कर दिया है, जब ये ने करके बात आती है तो फिर इस तरह का सेंटेंस बनता है, मैंने जी, उसका नुकसान पूरा कर दिया है। I have made up his loss. हाँ, वो तो मर चुका I था। have made up his loss. I हम्म, had died. नहीं, He ही, had died. वो मर चुका था, He ही हैड had डाइड। died. मैं जी। उस वक्त तक ये मकान तमीर कर चुका हूँगा। I will have built this house by that time. बाय दैट टाइम। ठीक है, मैंने Yes, sir. कुछ नहीं किया है। I have not आई done हैवंट, anything. आई हैवंट I have डन not एनीथिंग, हैवंट I हैवंट। haven't done I haven't done anything. हाँ, ये सब कुछ हो चुका था। All this has happened. ऑल दिस हैड हैपेंड। ठीक है, हैज ही All कम this बैक had फ्रॉम, क्या happened. वो अमेरिका से वापस आ चुका है? Has he come back from the USA? फ्रॉम द यूएसए, क्या वो यूएसए से वापस आ चुका है? ठीक है, अब ये जो Yes, है, sir. ये वन टू, हाँ मैंने आपको शायद ये वर्ड बताए थे, तीन वर्ड जो हैं बहुत इस्तेमाल होता है खासतौर पे अमेरिकन इंग्लिश। One to one. Yes. वाना, गाना, गाटा। ठीक है, आई टोल्ड जी यू जी। दिस थिंग्स, वाना, गाना, गाटा। तो अब मैं इसको ले लूँ, इधर गया।
मैंने गाना गाटा कहाँ चला गया जी, ये टेक्स्ट यहाँ पे ऐड हो जाता था, किधर चला गया भाई? चले इसको बंद करता हूँ, ये जो है ट्रबल कर रहा है। चले, तो ये जो है वाना गाना गाटा, ये 3 वर्ड है, ठीक है। तो अक्सर जो है मोबाइल जब हम इसको कर रहे होते जी हैं, जी। ये वाना वांट टू, गाना गॉट टू, और ये क्या था, वाना गाना गाटा। तो wanna want to गोइंग टू, गाना क्या है, गोइंग टू, ठीक है। तो ये जो है मैं जी अब चलना wanna चाहता going हूँ। to wanna want to। ये अभी आ रहे अब हैं, मैं ठीक है। चलना चाहता हूँ। हम्म, I wanna go now। आई वाना गो नाउ, I ठीक wanna है। go now। तुम क्या करना चाहते हो? जी। what do you wanna do। व्हाट डू यू वाना डू? तुम किससे मिलना चाहते हो? how do you wanna meet with। हु डू यू वाना मीट विद, ठीक है। तुम क्या बनना चाहते हो? जी। what do you wanna be। व्हाट डू यू वाना बी? वो मुझसे क्यों बात करना चाहता है? why does he wanna talk with me। हाँ, ये क्या क्यों कैसे की इंग्लिश पहले होगी, ठीक है, लेकिन आंसर इनका जी। ऑलमोस्ट एंड में होता है। मैं yes तुमसे लड़ना नहीं चाहता हूँ। I don't wanna fight with you। तुम कहाँ जाना चाहते हो? where do you wanna say। एक सेकंड सर, वो स्टेटमेंट ओझल हो गया। वेयर डू यू वाना गो? where do where do you wanna go। हाँ, वो क्या कहना चाहता है? what does he wanna say। व्हाट डज ही वाना से? तुम क्या तुम बाहर के मुल्क जाना चाहते हो? do you wanna go abroad। क्या तुम डॉक्टर बनना चाहते हो? do you wanna be doctor। डू यू वाना बी डॉक्टर, ओके। मैं चाय पीना पसंद करता हूँ। I like to drink tea। ये वाना ट्री और वाना टेक टी, ड्रिंक टी यहाँ पे गलत है। ड्रिंक होता है पानी की तरह पीना किसी चीज को, ठंडी चीज को, जैसे हम जूस पीते हैं, ये जूस नहीं है, ठीक है। जी जी। चाय गर्म सर होती है अच्छा, ये भी अगर। जरा एक्सप्लेन कर दें, क्योंकि यहाँ पे काफी मतलब कि स्टेटमेंट में यही ड्रिंक टी आ रहा है, तो ड्रिंक को लफ्ज कोल्ड चीज के लिए इस्तेमाल करते हैं। हाँ हाँ, ड्रिंक ऐसे है जो हम गटागट जो चीज हम पी सकते हैं, दूध पी लिया, जूस पी लिया, उसके लिए ड्रिंक होता है, ठीक है। तो ये जो और दवाई टी होती के है, लिए। कड़वी होती है, हम उसको ऐसे नहीं पी सकते पानी की तरह, ठीक है। तो वो जो है जी जी उसके लिए हम टेक यूज करते हैं, टेकिंग मेडिसिन। ड्रिंकिंग मेडिसिन जी। ठीक नहीं है, बहुत अजीब लगता है। इसी तरह से ये ड्रिंक टी जो है, ये भी बड़ा अजीब लगता है। जिन लोगों को सेंस है इसका, वो तो बहुत इसको फील करते हैं, क्योंकि पाकिस्तान में जी चाय पीना, पानी पीना एक जैसे लिया जाता है, तो इसलिए यहाँ पे फर्क नहीं किया गया है, ठीक है। कुछ मिस्टेक्स जी है, मैं जी साथ जी। साथ एक्सप्लेन करता जाऊंगा। ठीक। मैं तो चाय सर पीना एक। पसंद करता हूँ, आई वाना टेक टी, ठीक है। यहाँ पे टेक है। यस। जी जी। ठीक हो आई गया। लाइक टू टेक टी, आई वाना टेक टी, दोनों का एक जैसा मतलब है, ठीक है। ठीक। ऊपर भी चाहता हूँ, पसंद करता हूँ, एक ही बात होती है। तो जी। मैं चाय पीना पसंद करता हूँ, आई लाइक टू टेक टी। आई लाइक ऑलराइट। टू टेक टी। यस। आप क्या खाना पसंद करते हैं? व्हाट डू यू लाइक टू ईट। मैं किसी से मिलना पसंद नहीं करता हूँ। आई डिड नॉट लाइक। आई फिर डिड कहाँ से आ गया नॉट भाई? लाइक। आई डोंट लाइक। आई डोंट लाइक, सॉरी। आई डोंट लाइक मीट विद एनीवन। यहाँ पे टू मिसिंग है, आई डोंट लाइक टू मीट एनीवन। क्या तुम फिल्में देखना पसंद करते हो? डू यू लाइक टू सी मूवीज। यू लाइक टू सी मूवी। मैं इंग्लिश बोलना पसंद नहीं करता हूँ। आई डोंट लाइक टू स्पीक इंग्लिश। वो मेरी तरफ देखना पसंद नहीं करती है। शी डज नॉट लाइक टू लुक एट मी। ठीक है। क्या वो बातें करना पसंद नहीं करती है? वी लाइक टू विजिट। ओ सॉरी, हम सैर व तफरीह करना पसंद करते हैं। विजिट वी का यहाँ लाइक पे टू सही विजिट। एक्सप्रेशन नहीं है, यहाँ पे ट्रेवलिंग होता जी। है, ठीक है। हम ट्रैवल। सैर व तफरीह यस सर। करना पसंद करते हैं, वी लाइक ट्रेवलिंग, ठीक है। जी। या वी यस लाइक टू सर। ट्रेवल, दोनों ठीक है।
यस सर। हम सफर करना पसंद करते हैं, वी लाइक टू ट्रेवल। हम सैरो सेहत पसंद करते हैं, वी लाइक ट्रेवलिंग। उसमें ट्रेवलिंग हो जाता है, इसमें ट्रेवल है, ठीक है। क्या यस वो सर। बातें करना पसंद नहीं करती है? एंड डज नॉट शी लाइक टू टॉक? डजंट शी, डजंट, ठीक है। डजंट शी लाइक टू डजंट। टॉक। मैं पार्क बैठना डजंट। पसंद नहीं करता हूँ। आई डोंट लाइक टू सिट फ्री। हाँ, फ्री जो है ये पॉजिटिव सेंस में होता है। अगर हम नेगेटिव सेंस में आइडल है, ठीक है। मैं वेला बैठना पसंद नहीं करता, ये मैं निकम्मा बैठना पसंद, आई डोंट लाइक टू सिट आइडल, ठीक है। आई आइडल। हाँ, फ्री को आइडल में चेंज करें। यस सर। आइडल होता है ना फारग बैठना, बगैर काम जी कोई जी ना करना, वेले बैठे रहना चाहिए। मैं फारग बैठना जी। पसंद नहीं करता हूँ, आई डोंट लाइक टू सिट आइडल। फ्री जो है आजाद होता यस है, सर। ये पॉजिटिव सेंस में इस्तेमाल होता है। जी जी ट्राई ठीक। टू कोशिश करता हूँ, मैं इंग्लिश बोलने की पूरी कोशिश करता हूँ। आई ट्राई माई बेस्ट टू स्पीक इंग्लिश। मैं अपना काम खुद करने की कोशिश करता हूँ। आई ट्राई आई ट्राई टू डू माई वर्क माई सेल्फ। हाँ हाँ, वो हमेशा दूसरों को धोखा देने की कोशिश करता है। ही ऑलवेज ट्राइज टू गेट टू चीट अदर्स। गुड। ही ऑलवेज ट्राइज टू चीट अदर्स। ओके, तुम कोई नौकरी हासिल करने की कोशिश क्यों नहीं करते हो? व्हाई डोंट यू ट्राई टू गेट ए जॉब? Why don't you try to get a job? मुझे अपने पैसे निकलवाने आते हैं। आई नो हाउ टू ड्रॉ माई मनी। हाउ टू यहाँ पे जैसे है, जिस तरह से है, ठीक है। मैं जानता हूँ जिस जी तरह से पैसे निकलवाने हैं। ये क्यों जी का ये आंसर है यहाँ पे। ये क्योंकि हाउ जी जो है सर। मैंने बताया था, अगर इसके बाद क्वेश्चन वर्ड आ जाए, हेल्पिंग वर्ब आ जाए तो ये क्वेश्चन बन जाता है। लेकिन यहाँ पे इसके बाद ठीक। देखिए हाउ के बाद क्वेश्चन वर्ड नहीं है, प्रपोजिशन आ गई है, ठीक है। तो जी मुझे आई नो हाउ टू गेट टू ड्रॉ माई मनी, मैं जानता हूँ ये बैंक से पैसे निकलवाने वाली बात है, वो किसी शख्स से जी निकलवाने वाली बात नहीं है। मुझे अपने ठीक। पैसे निकलवाने आते हैं, आई नो हाउ टू ड्रॉ माई मनी, ठीक है। जी जी जी। उसे तो बात करना ही नहीं आती है। शी डज नॉट नो हाउ टू टॉक। ओके, क्या आपको गाड़ी चलाना आती है? डू यू नो हाउ टू ड्राइव? हम्म, मुझे इंग्लिश बोलना नहीं आती है। आई डोंट नो हाउ टू स्पीक इंग्लिश। गुड। आगे है यूज, यूज का इस्तेमाल है, ठीक है। अकल को जी हाथ मारो। ये मीनिंग अल्फा उर्दू कुछ है, इंग्लिश कुछ है, अच्छा इस लेकिन मीनिंग इनके सेम है। अकल को हाथ जी। मारो। यूज योर हेड। अगर किसी को कहना हो किसी और चीज को इस्तेमाल में लाओ। यूज एनीथिंग एल्स। जहन पर जरा जोर डालो। यूज योर विट्स। विट्स, विट्स, ठीक है, हाथ दिमागी पोजीशन। जी इस्तेमाल शुदा जी करें। सर, ये इसको माइंड भी कह सकते हैं। नहीं यूज नहीं, योर माइंड। क्या क्या कह सकते हैं, यूज योर माइंड, ठीक है, दिमाग इस्तेमाल करें, हो सकता है। विट्स जो है हाथ जी दिमागी को कहते हैं। अच्छा, ठीक। इस्तेमाल शुदा करें। यूज्ड कार। यूज्ड कार्स, इस्तेमाल शुदा जूते। यूज्ड शूज। इस्तेमाल शुदा कपड़े। यूज्ड क्लॉथ्स। यूज्ड क्लोथेस, ठीक है। जी यूज्ड टू यहाँ पे होता है माजी में इनको काम करते हुए होना, आदत होना, ठीक है। माजी में माजी जी की आदत बयान करने के लिए यूज्ड टू इस्तेमाल करते हैं। मैं क्रिकेट खेला जी। करता था लेकिन आजकल नहीं खेलता हूँ। आई यूज टू प्ले क्रिकेट नॉट नाउ ए डेज। बट यहाँ पे लेकिन की इंग्लिश नहीं लिखी हुई है, बट नॉट नाउअडेज, लेकिन आजकल नहीं, ठीक है। जी हम जी। इकट्ठे तालाब में नहाया करते थे। we used to swim together in the pond। पॉन्ड, ठीक है, यानी तैरा करते थे, जी। मतलब ये वो इंग्लिश बोला करता था लेकिन आजकल उर्दू बोलता है। he used to speak English but now he speaks Urdu। उर्दू, मैं बचपन में स्कूल से नहीं भागा करता था। I did not use to play truant। ट्रुएंट, ठीक है, प्ले ट्रुएंट, भाग जाना स्कूल से। क्या वो तुम्हें तंग किया करता था? did he use to play pester you। हाँ, डिड ही, ये गलत है यहाँ पे, ठीक है। डिड आगे है, फॉर्म जी पहली हो जाएगी, ये डी का खत्म, ये गलत लिखा हुआ है, जी। यस ठीक है। सर। डिड के साथ पहली फॉर्म आती है, विल, वुड, शैल, शुड, कैन, कुड, मे, माइट, मस्ट, डू, डू, डज, डिड। मैं इसका ध्यान रखता हूँ, अच्छा, आप भी रखा यस करें। सर। ये इसने गलत लिखा हुआ है।
Did he use to pester you? क्या आपको तंग किया करता था? जी जी अच्छा जी, उसके बाद है मुझे अपने तालिब इल्म से इंग्लिश बोलना पड़ती है। ये हैज टू, हैव टू या विल हैव टू या हैड टू, ये होता है कोई काम मजबूरी की हालत में करना, ठीक है, नापसंदीदगी का इजहार होता है इसमें। मुझे अपने यस तालिब इल्म से इंग्लिश बोलना पड़ती है। आई हैव टू स्पीक इंग्लिश विद माय स्टूडेंट्स। स्टूडेंट्स, ठीक है। मुझे जी उसे सड़क पार करवाना पड़ती है। आई हैड टू हेल्प हिम क्रॉस द रोड। सॉरी, मैं ये पास्ट है, मुझे उसे सड़क पार करवानी करवाना पड़ी। पड़ी। आई हैड टू हेल्प हिम क्रॉस द आई रोड। हैड टू हेल्प हिम क्रॉस द रोड। तुम्हें मेरी बात सुनना ही पड़ेगी। यू विल हैव टू लिसन टू मी। क्या उसे सुबह सुबह उठना पड़ता है? डज शी हैव टू गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग। हाँ, हमें सारा दिन काम करना पड़ता है। वी हैव टू वर्क ऑल डे। मुझे अब जाना है। आई हैव टू गो नाउ। हाँ, मुझे तो 10 बजे आना, तुम्हें तो 10 बजे आना था। यू हैड टू कम एट 10 एन, o'clock। तुम्हें वहां जाना होगा। यू विल हैव टू गो देयर। यू विल हैव टू गो देयर। अच्छा, तुम मुझसे क्या चाहते हो? व्हाट डू यू वांट विद मी। व्हाट डू यू वांट विद मी? तुम किस चीज से डरते हो? व्हाट डू यू अफ्रेड ऑफ। व्हाट डू यू फियर ऑफ होना चाहिए, अफ्रेड तो ये सही नहीं है, ठीक है। या व्हाट आर यू जी अफ्रेड ऑफ? जी व्हाट डू जी। यू फियर ऑफ, डू के बाद वर्ब आना चाहिए था, ठीक है। व्हाट डू यू हाँ फियर जी ऑफ, हाँ जी आप हाँ किस चीज से डरते हो? या व्हाट आर यू जी। अफ्रेड ऑफ, तुम किस चीज से डरे हुए हो, ठीक है। जी। तुम्हारा इस बारे में क्या ख्याल है? व्हाट डू यू थिंक ऑफ इट। व्हाट डू यू थिंक ऑफ इट? आप क्या खाएंगे? व्हाट डू यू व्हाट विल यू हैव। व्हाट विल यू हैव, व्हाट विल यू ईट। अच्छा, अभी मैंने आपको जो प्रैक्टिस करवाई थी वो कही थी डू यू, ये आके विल यू आ गया, विल यू हैव भी आ गया, ठीक है। यस सर। क्लियर है ना? ये डू यू भी हाँ आ जी हाँ गया। अब जी। ये देखें, ज्यादातर डू यू के इस्तेमाल हुए हैं और इससे पहले व्हाट लगा दिया गया है, ठीक है। व्हाट लगा के व्हाट क्वेश्चन के वर्ड फौरन यस। बाद ये है, ये अब आ गया, ये जरूरत इसे, और व्हाट से पहले कुछ नहीं लग सकता, ठीक है कि नहीं। ठीक ठीक ठीक। व्हाट की जगह हो सकता है वेयर, व्हेन, व्हाट, हाउ, हु, whom, which हो एनी सकता है, वर्ड। लेकिन इनसे पहले हाँ और जी। कोई वर्ड नहीं है, दो क्वेश्चन वर्ड वो नहीं नहीं आते। लग सकता। ठीक। क्लियर? तुम क्या यस। करते हो? एक सेकंड। व्हाट डू यू डू। व्हाट डू यू डू? तुम मेरे बारे में क्या जानते हो? व्हाट डू यू नो अबाउट मी। हाँ, जब हम व्हाट का इस्तेमाल करते हैं तो हम किसी चीज के बारे में पूछ रहे होते हैं, ठीक है। तो क्या यस तुम सर। काम करते हो या नहीं करते हो, उसमें कोई बात ऐसे है या नहीं है, यस नो वाला क्वेश्चन दे तो उसमें फिर व्हाट हम इस्तेमाल नहीं करते, उसमें डू यू से हम क्या के मीनिंग ले लेते हैं, ठीक है। ठीक। यस नो के क्वेश्चन में हम डू यू यूज करते हैं डू। यानी हम हेल्पिंग वर्ब को बाहर ले आते हैं, बस आर यू गोइंग, इसमें भी क्या है, क्या तुम जा रहे हो, लेकिन हम किसी एक्शन का पूछ रहे हैं यस नो की फॉर्म में, ठीक है। तो जब हम यस व्हाट सर। कहते हैं तो हम किसी चीज का पूछ रहे होते हैं। ठीक। क्लियर? तुम मेरे बारे में यस क्या जानते हो? सर। व्हाट डू यू नो अबाउट मी? व्हाट डू यू नो अबाउट मी। अच्छा जी, अब ये है व्हाट के बाद किसी चीज का नाम आ जाता है, जैसे अभी सेंटेंसेस आएंगे। तुम्हें कौन जी। सी जबान समझ आती है, यानी व्हाट आप कौन सी लैंग्वेज डू जबान यू समझते हैं, ये अंडरस्टैंड। पॉजिटिव सेंस में। जी हाँ, जी जी। व्हाट लैंग्वेज डू यू अंडरस्टैंड। व्हाट लैंग्वेज डू यू अंडरस्टैंड? ये आपको कौन सा मौसम पसंद है? व्हाट सीजन डू यू लाइक। आपका क्या कारोबार है? व्हाट व्हाट बिजनेस डू यू हैव। व्हाट बिजनेस डू यू हैव, ठीक है। आपको कौन सा यस सर। अदाकार पसंद है? व्हाट व्हाट एक्टर डू यू लाइक। तुम कौन सी फिल्में देखते हो? व्हाट मूवीज डू यू हैव सी। व्हाट मूवीज डू यू सी? क्या वक्त हो गया है? व्हाट टाइम इज इट। तुम किस वक्त सोते हो? व्हाट टाइम डज ही गो टू वर्क। सॉरी। व्हाट टाइम डू यू स्लीप।
हाँ, वो किस वक्त काम पर जाता है? What time does he go to work? ये कौन सा मुल्क है? What country is it? हाँ, वो कौन सी क्लास है? ये कौन सी क्लास है? What class is it? हाँ, तुम कौन से उस्ताद हो? What teacher are you? वह टीचर आर यू, तुम किस वक्त आओगे? What time will you come? ये कौन सा रंग है? What color is it? तुम कौन सी किताब खरीदना चाहते हो? What book do you want to buy? वर्ड बुक। आपको कौन सी जबानें आती हैं? What language do you know? हम्म, ये कौन सी फिल्म है? What movie is this? इस दिस, ठीक है। ये कौन सी Yes. जगह है? What place is it? उसने कौन सी शर्ट पहनी हुई है? What shirt is he wearing? व्हाट शर्ट इज ही वियरिंग। आगे हाउ का इस्तेमाल, ठीक है। जी. वो कितनी खूबसूरत है? After all, he beautiful हाउ is हाउ she. हाउ। How beautiful is she? हम्म, यार को ऐसी भी क्या खूबसूरत है, ठीक है। तुम जी. कितने तेज भाग सकते हो? कितना तेज भाग सकते हो? How fast can you run? तुम्हारा भाई कितना लंबा है? How tall is your brother? दरैज सिंध कितना लंबा है? How long is the Indus? इंडस। हाउ लॉन्ग है, ये टाइम के लिए भी यूज होता है, ठीक है। आप कितनी देर पढ़ाते हैं? How long do you teach? टीच। आप वहाँ कितनी देर ठहरना चाहते हैं? How long do you want to stay there? हाउ लॉन्ग, ओके। आपको बस का कितनी देर इंतजार करना पड़ता है? How long do you have to wait for the bus? फॉर द बस, कितनी देर लगाओगे? How long will you take? बिली टेक, तुम वहाँ कितनी देर ठहरे थे? ये थे How गलत है यहाँ long पे, did तुम you वहाँ कितनी देर ठहरे? जी. तुम How वहाँ long कितनी did देर you ठहरे? stay there? How long did you stay there? ओके। हाउ मच, हम ये ऐसी चीज के लिए यूज करते हैं जिसको हम गिन नहीं सकते, ठीक है, मिकदार में, ठीक गिनती है. में नहीं है ये, जी. ठीक है। यस तुम्हारे सर. पास कितने पैसे हैं, यानी कितनी रकम है? हाँ जी. How हम्म, much money do you have? सर ये तो काउंटेबल है अमाउंट. नहीं, वो पैसे रुपये काउंटेबल है, अमाउंट काउंटेबल नहीं होती। ठीक. ठीक है, रुपये काउंटेबल है, लेकिन मनी जो है वो कम कम ज्यादा हो सकते हैं, वन मनी टू मनी नहीं हो सकता। तुम्हें ठीक. कितना वक्त चाहिए? How much time do you want? ये कितने का है? How much is it? तुम रोजाना कितना दूध पीते हो? How much milk do you drink daily? ओके। तुम्हें कितना सालन चाहिए? How much pottage do you want? ओके। हाउ मैनी, ये है गिनती में, ठीक है। वहाँ कितने जी. लोग हैं? How many people are there? तुम्हारे पास कितने रुपए हैं? How many rupees do you have? तुम्हें कितनी चीजों की जरूरत है? How many things do you need? ओके। तुम्हारे कितने बच्चे हैं? How many children do you have? तुम्हें कितनी जुबानें आती हैं? How many language do you know? हाउ मैनी लैंग्वेज डू यू नो? हु, होता है कौन, ठीक है, या किसने। अम, जी. खिड़की किसने तोड़ी है? Who broke the windows? हाँ, Who इसका broke the एक्चुअल मतलब window? है कौन है जिसने खिड़की तोड़ी, ठीक है। जी. आपको किससे मिलना है? Who do you want? हु डू यू वांट, आप किसे किसे चाहते हैं, ठीक है। तुम किससे बातें कर जी. रही थी? Who were you talking with? Talking to? टॉकिंग टू, वो How, कौन है? how were how were you talking to? उसके बाद हु है हु वर यू टॉकिंग टू? who's that? Who's that? दैट, रास्ते में तुम्हारी किससे मुलाकात हुई? How did you meet with on the way? हु डिड यू मीट विद ऑन द वे? हुज किसका, ठीक है।
ये जी। किसकी करतूत है, ये किसका काम है? Whose act is this? ये किसका घर है? Whose house is this? ये किसका कमरा है? Whose room is this? वो आदमी जिसकी शर्ट सफेद है। The man whose shirt is white. ओके। ये है वो घर जिसकी छत कल रात गिरी। This is the house whose roof fell down last night. ओके। जिसका नाम असलम है वो यहाँ आ जाए। Come here, whose name of Aslam is Aslam. Whose name is Aslam। ठीक हो गया? So this is Yes, enough for today। आज इसमें से इतना ही, and yes, we'll continue our next class on Monday। ठीक है? inshallah. आप इसको Yes, जो है sir. प्रैक्टिस करें। Saturday, I don't want to Saturday make off. it। जी बेटा? Sir, Saturday off. सैटरडे संडे ऑफ है। ठीक है? 5 days a Yes, week, 2 दिन yes, आप जो है इस पे खुद प्रैक्टिस करें, और yes, sir. उसमें मुझे भी कुछ रेस्ट चाहिए होती है फ्रेश होने के लिए। ठीक है? सही तो सही विल बिल्कुल यू ठीक। कंटिन्यू? अब आपका इसको जारी रखने का इरादा है? यस सर। तो फिर मुझे फीस भिजवा देना। ठीक है सर, मैं इंशाल्लाह मंडे ट्यूसडे को आपको करवा दूंगा। चलो ठीक है, ऑलराइट। टिल देन बेस्ट ऑफ लक। ओके, सी यू ऑन बेस्ट मंडे। ऑफ मंडे लक। से मुलाकात करेंगे। स्टे इंशाल्लाह सर। ब्लेस्ड, स्वीट ड्रीम्स। ओके सर, अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज।